Hello students. So as you know, we are doing economics chapter 1 development, and certain points are there which we really needed to we really needed to do. Now what we are doing and what we are going to understand is that we are comparing the countries, how the income is compared, how do we understand, how do we make ourselves aware about the income criterias and on which basis the countries are being compared. तो हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 3 states of India. Got it? You know it very well. Haryana, Bihar and Kerala. So the average income is mentioned here. हरियाणा के लोग कितना कमा रहे हैं 1 year में, एंड बिहार में what is the average. तो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इफ वी सी हाउ द डेवलपमेंट इज हैपनिंग, then we will understand that Haryana is the most developed. As you can see the income level of the people. I'm sorry. Then we will also see the Bihar. लोएस्ट में हमारे पास बिहार आ रहा है. Then Haryana is the most developed and Bihar the least developed state of the 3. तीनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना बच्चे. So when we will be comparing, we'll be finding these differences. बाकी के डेटास चेक कर लें हम, because every time it happens that you get confused in these datas. Now try to understand what are the criteria that we are discussing. सबसे पहला जो criteria हम discuss कर रहे हैं that is infant mortality rate per 1000 live birth. ठीक है, मतलब 1000 बच्चे जो ट्राई टू, अभी इसमें भी प्रॉब्लम होती है ना, इसमें यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड दैट कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आई एम सॉरी मर रहे हैं. 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें कितने बच्चे मर रहे हैं out of 1000. infant mortality rate per 1000 live births. हरियाणा में it is 33, केरला में 10 and बिहार में 38. just see. अभी पहले तो infant mortality rate देखो. the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, उस साल में पहले IMR समझो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year. 1 साल के पहले ही जो बच्चे मर रहे हैं. ठीक है, 1000 लाइव चिल्ड्रन, 1000 लाइव चिल्ड्रन born in that particular year. So children, the IMR is here, number of children that die before the age of. अभी क्या है ना, देखो अभी IMR मैंने पूछा था क्लास टेस्ट में. What I am discussing बच्चे कि IMR जब मैंने पूछा, check your answers, प्लीज़ check your answers. आपके क्लास टेस्ट पेपर्स अभी आप ही के पास हैं. Got it? How many of you have written exactly the same? Okay, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चे मरे, और वो भी 1 साल के अंदर मर गए. Got it? There are various factors for that. Then you have the literacy rate. ठीक है, पहले अब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख रहे थे. अब देखो हरियाणा में क्या है. हरियाणा में 33, केरला में 10, बिहार में 38. साल भर से पहले द चिल्ड्रन हु आर डाइंग, सबसे ज़्यादा नंबर बिहार में है. दिस शोज
the low quality and the malnutrition that exists among the mothers and साल भर के अंदर, बिकॉज क्या होता है साल भर क्या खा रहा है वो बच्चा, क्या खा रहा है, वॉट इज द चाइल्ड हैविंग, नथिंग. द चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मदर. दिस शोज द कंडीशन ऑफ मदर्स इन बिहार. विमेन, अभी यहाँ देखो घूम फिर के हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the main mudda, what is the main issue on which we are talking. Women, the condition of women is very good in Kerala. अच्छे से खाती पीती हैं. जब अच्छे से खाएंगी पिएंगी औरतें, and especially after giving birth to a child, ठीक है, when a child is born, when there is one baby born, उसके बाद इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द मदर. एंड साल भर तक उनको बहुत अच्छे से फीड करना है उस बच्चे को, तो मदर को इतना अच्छे से खाना खिलाना चाहिए जिसका कि कोई मतलब जो हम सोच भी नहीं पाते. वी डोंट थिंक ऑफ इट. हरियाणा में आप देखो फिर वही का हालत है, लेकिन सबसे ख़राब हालत बिहार में है. गॉट इट. सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दो चीज़ें होती है, एक फर्टिलिटी होती है, द चाइल्ड बॉर्न, कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज फर्टिलिटी. गॉट इट. और कितने बच्चे मरे. गॉट इट. द यंग नहीं माना कि द बेबीज हु आर डाइंग. तो ये आप देख लो. अब देखो ये दिस इज द डेटा ऑफ 2016. हर एक बुक पे अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग ईयर का अलग अलग डेटा है ना. तो आप देख लेना आपके उसमें जो भी ईयर का डेटा दिया हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस, अभी यहाँ समझो, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर यू हैव टू मेंशन दैट यू आर गिविंग द डेटा ऑफ 2016 और 15 और 18 और 17. ये आप देख लेना, जस्ट चेक इट आउट. गॉट इट. डोंट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशंस. So infant mortality rate per 1000 live birth 2016 में, यहाँ पे आप देख लो. अब हम देखेंगे लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट किस बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है. नाउ ये देखो, पहले इसको समझो. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे. लेकिन अब आप याद करो लिटरेसी रेट का जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है. Have you given the age group? How many of you have given the age group? एक नंबर का क्वेश्चन था ये, लेकिन क्या अगर आपने ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है तो क्या आपको एक नंबर मिलना चाहिए. Got it? Try to understand. Okay? ये सारी चीज़ें आपको देनी है. And then net attendance ratio. I'm sorry, पहले लिटरेसी रेट समझ लेते हैं. यहाँ पे 7 एंड अबव एज ग्रुप. बेटा ये जो अब आप नहीं देंगे ना, सर इनकम्प्लीट है. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन दिया, कैसे पूरा नंबर मिलेगा आपको. हाउ विल यू गेट द फुल मार्क्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. गॉट इट. तो 7 एंड अबव एज ग्रुप जितने बच्चों का है, एंड हु ऑल आर लिटरेट, हु ऑल आर एजुकेटेड, उनके बारे में हम देख रहे हैं. ये देखो अभी परसेंटेज में है. दिस इज इन परसेंटेज. 100 में से 82% आर एजुकेटेड. कहाँ की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग ऑफ हरियाणा. यहाँ पे भी केरला बाजी मार रहा है, देख रहे हो. हरियाणा में इट इज 82, केरला में 94, एंड अगेन बिहार इज लैगिंग बैक 62. बहुत कम बच्चे जा रहे हैं. क्यों मैं बताऊं आपको. बिकॉज वॉट हैपन्स चिल्ड्रन, बच्चे जो है जैसे ही पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो व्हेन दे ग्रो अप अ लिटिल बिट, पेरेंट्स टेक देम टू द फील्ड्स. एग्रीकल्चरल फील्ड्स है ना, उनको भी किसान बनाना है तो उनको वो लेके जाते हैं.
Got it? So 82, 94 and 62. Then what happens? अब देखो attendance ratio. NAR attendance ratio per 100%. 100 में से कितने हैं बच्चे जो एजुकेटेड हैं, जो जा रहे हैं स्कूल? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो नाम लिखा लिया, दूसरा स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे वी आर गेटिंग द नंबर वेयर स्टूडेंट्स हैव एडमिटेड इन द हैव गॉट देयर एडमिशन डन इन द स्कूल. क्या होता है ना, एज पर द एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट. यस, कि आप आइए बच्चों को पढ़ाइए, अगर आप पढ़ाएंगे तो हम आपके बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ देंगे, उनको आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आराम हो जाएगा. एंड देन देयर आर मेनी फ्री की बुक्स एंड ऑल दैट. Got it? All these things are happening. People want to avail all those facilities. लोग चाहते तो हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन सच में क्या वो बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में? तो ये अटेंडेंस लिया जाता है. एज यू ऑल नो, यू ऑल ऑल्सो गिव द अटेंडेंस डेली. तो दिस इज़ द नंबर. हरियाणा में इट इज़ 61, केरला में 83 एंड बिहार में अगेन बिहार इज़ लैगिंग बैक. हर जगह आप देख लो बिहार पीछे हो रहा है. सेकंड नंबर पे हरियाणा है, सबसे ऊपर केरला है. केरला, अब आई विल टेल यू व्हाई केरला इज हेडिंग अबव. व्हाई इज केरला गोइंग अहेड? केरला इज गोइंग अहेड बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी अवेयर एंड लिटरेसी रेट इज हाई. जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको समझ में आता है कि बच्चों को पढ़ाना है. You can't make the children stay back home. उनसे आप खेतों पे काम करा के क्या करेंगे? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. Got it? Now just check. Net attendance ratio. Total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. That is what just now that I was discussing. The children of age group 14 and 15 years and percentage of total number of children in the सेम एज ग्रुप. उसी एज ग्रुप के जो है सारे बच्चे जो हैं वो उसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है. तो अब आई होप द डाटा इज़ क्लियर नाउ. अब आप देख रहे हो डाटा, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, अब ये जो हमने अभी टेबल देखा ना, उस टेबल का एक्सप्लेनेशन इज मेंशन्ड हियर. चिल्ड्रन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपेयरिंग द स्टेट्स, कंपैरिजन ऑफ द कंट्रीज व्हेन वी से, तो आप कंट्रीज का कंपैरिजन तो कंट्री ए और कंट्री बी करके दिया हुआ था. ओरिजिनल कंट्रीज का कंपैरिजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वो आप करते हैं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ डन एट अ हाई लेवल. हाई लेवल मीन्स जब आप 11-12 में पढ़ते हैं, आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो है कंट्री वाइज करनी पड़ती है. अभी इट इज़ द इनिशियल स्टेज, अभी बस शुरू ही हुआ है. दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द स्टेट्स. राज्यों में, ऑल द स्टेट्स, व्हाट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन आर वी डूइंग एंड ऑन व्हाट बेसिस आर वी कंपेयरिंग. गॉट इट? तो अभी टेबल में हमको क्या दिखा? सबसे पहले वी हैव सीन आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज. लेकिन हरियाणा में प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर वॉज 36. एक बारी फिर से देखें, यू वॉन्ट टू सी इट वंस मोर. ये रहा. अभी यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है. यहाँ का डाटा इन्होंने 2016 का दिया है एंड एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दे दिया है, 12. और थोड़ा सा इसमें डेटाज इन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो लिटिल बिट ऑफ डेटा इज चेंज्ड.
तो कोई बात नहीं, इट हैपेंस। आप जो टेबल में देख रहे हो आप वही याद करो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, इट डजंट हैव, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो 2 times more than that of केरला। सो क्या हो रहा है कि जितने बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं केरला में, उससे कहीं ज़्यादा जो है हरियाणा में मर रहे हैं। एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला। अभी पर कैपिटा इनकम देख लो बच्चों, जस्ट सी, लुक एट द पर कैपिटा इनकम। ये रहा, हरियाणा सबसे ऊपर है पर कैपिटा इनकम है, लेकिन बच्चे यहीं पे ज़्यादा मर रहे हैं। समझ रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इनकम लेवल्स आर हाई, बट प्रॉपर अटेंशन एंड प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन फॉर द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे, जस्ट थिंक हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इमोशनल करके आपको समझाया जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इमोशनल मैनर। गॉट इट? आई एम सॉरी। Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. Obviously children, बच्चे आपके पेरेंट्स आपको कितना मानते हैं, पेरेंट्स आपके लिए कितना सोचते हैं। तो if a child lost its life, if the child loses the life, what kind of a pain the parent might be facing. तो 2016 है, it is 2016, so we are not talking of old times. 70 years after independence, when our metro cities are full of high rising buildings. अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, on one hand side we are developing so much, but in reality what is happening? Just check how the small children are dying. Got it? Now just check what is mentioned here. The problem does not end with infant mortality rate. बच्चे मर रहे हैं उसी में खाली प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही ना, other problems are also there. Half of the children aged 14 to 15 in Bihar स्कूल जा ही नहीं रहे हैं क्लास 8 के बाद. Look at the number of students attending the school. तो this means that if you went to school in Bihar, अगर आप बिहार के किसी स्कूल में आए हैं तो हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास चिल्ड्रन, इट इज़ फ्रॉम प्राइमरी होता है क्लासेस 1 to 5 एंड एलिमेंट्री इज क्लासेस 6 to 8. यू वुड बी मिसिंग योर एलिमेंट्री क्लासेस. तो जो स्कूल में नहीं है, दोज हु आर नॉट देयर इन द स्कूल, तो आप सोचो, इफ़ यू वेर ऑन देयर प्लेस यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ. आपको पढ़ना है क्योंकि क्लास 1 to 5 में बहुत बेसिक एजुकेशन इज़ देयर. तो इकोनॉमिक्स पढ़ने तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते बिकॉज योर इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9th. दैट्स वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर ना, दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स बुक. So try to understand कि if you wouldn't have studied class 6 to 8 properly, you wouldn't have got your education properly. Got it? और आप इतने एलिजिबल ही नहीं होते कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ पाते. वेरी नाइस पिक्चर इज हियर वेयर द डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. नाउ जस्ट सी, वी हैव जस्ट नाउ असेस्ड द टेबल. इतना कुछ टफ नहीं था, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टेबल्स प्रॉपरली, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला. तो केरला के लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, क्या हम ये कहें कि दैट द पीपल इन केरला आर हैविंग मोर मनी? लेकिन लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज. केरला में मतलब इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हरियाणा में इनकम ज़्यादा है,
पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, बट देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देयर इज़ lack of awareness. Got it? Big families are there. Parents are taking care of the children, making all arrangements for their education and everything. लेकिन but still education level is not up to mark. पूरी तरह से it is not coming up to mark. तो money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. हरियाणा में लोगों के पास पैसा है, लेकिन लुक एट द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल कितना नीचे है. तो ये दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स. प्लीज़ इसको मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, चिल्ड्रन. गॉट इट? तो income, you try to understand this thing, that income by itself is not a एक पूरा adequate indicator नहीं है material goods का and services का. खाली मतलब you are earning very well, but then you are not investing the money at proper place. Proper place यहाँ क्या है? ये नहीं कि आपने घर खरीद लिया, यू हैव बॉट अ हाउस, यू आर बाइंग अ व्हीकल एंड यू हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़. ये सारी चीज़ें हैं. तो आप इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत, ये चीज़ आपको समझना है इस चीज़ को कि मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट पीपल एस्पायर फॉर. जैसे योर मनी कैनॉट बाई यूर पॉल्यूशन environment. ये बच्चे जिस समय when I had discussed previously also ना this topic, there also I had said कि अगर मनी से ही हम सब कुछ हो जाता तो आज सारे लोग घर के अंदर नहीं बैठे होते. Even the Ambanis are also अभी right now in quarantine. I gave this example previously also, but this is the most apt example, appropriate example. That's why I am citing this example here, beta. So पैसा है आपके पास, बट कैन यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स? मिलावटी वाला अनअडल्टरेटेड, मतलब यू आर नॉट गेटिंग मेडिसिन अप टू मार्क अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी. ऐसी जगह पे जाओ, यू गो टू सच अ प्लेस दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स. सो मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट. आज की लाइफ आप देख लो, अगर पैसे होते तो द बिगेस्ट ऑफ द कंट्रीज, द काइंड ऑफ क्राइसिस दे आर फेसिंग, दे वुडंट हैव बीन फेसिंग दैट क्राइसिस. सो अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. आ गए हम इस पे. वी आर बैक टू कोरोना. हम क्या कर रहे हैं अभी? द होल कम्युनिटी इज टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स. एक या दो लोग घर पे नहीं हैं, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा कंट्री अभी घर के अंदर बंद है. गॉट इट? सो क्या सोच रहे हो, पैसे नहीं है लोगों के पास? हाँ हाँ, एवरीबडी हैज़ मनी. सो लेट द मनी इरेडिकेट करो ना. क्या ऐसा हो रहा है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट हैपनिंग. सो वेरी क्लियरली इट इज़ मैंशनड हियर. Please mention it in your examples. When you write your answers, please mention this in your examples. Got it? So, just check here. It is mentioned here. Actually, many of the important things, मतलब life में जितना कुछ भी है, best way and the cheapest way to provide these goods and services collectively. ये सारे goods and services we have to provide it collectively and think that just think, will it be cheaper to have collective security? Got it? सारे मतलब सब लोग मिल के सिक्योरिटी अपना करें होल लोकेलिटी के लिए. we are thinking, और for each house should have its own security. लेकिन क्या इस समय हम खाली एक घर या दो घर अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं कोरोना से? नो, द होल सिटी इज प्रिवेंटिंग इटसेल्फ फ्रॉम कोरोना. तो
वुड यू बी एबल टू स्टडी? अगर पूरे लोग ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरी लोकेलिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, देन व्हाट विल यू डू? ओके, नेक्स्ट, नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। किसी प्राइवेट स्कूल में या तो द पेरेंट्स शुड सेंड यू, if they have money they can afford to send you some private school, so they will definitely send you. So you are actually able to study because many other children also want to study. बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप भी पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जब घर में रहते हैं तो आप भी क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हुए घर में रहने लगते हैं। तो now government think, the people think that government should open schools and provide other facilities, so everybody should get a fair chance to study. सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज़ में। नाउ इन मेनी एरियाज अभी भी क्या हो रहा है, चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं उनको घर का काम करने के लिए, मैं अभी ये शहरों की बात नहीं हो रही, चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द सिटी एरिया, इन द सिटीज़, इन द टाउन्स द कंडीशन इज़ नॉट दिस, एवरीबडी इज़ गेटिंग अ फेयर चांस टू स्टडी। लेकिन गांव में अभी भी ऐसा होता है कि बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटियों का क्या है, तो शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी, इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, इट इज़ नॉट फॉर द सिटीज़, इट इज़ फॉर द विलेजेस दैट पीपल आर लिविंग इन। गॉट इट? नाउ अगेन वी आर बैक टू अंडरस्टैंड दिस। Kerala has low infant mortality rate because it has got adequate provision of basic health and educational facilities. इनकी educational facilities जो है ना वो बहुत अच्छी है, it is very good. And similarly in some states, कुछ states में क्या है, the public distribution system, PDS you all know it very well, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगी, 9th क्लास में you have all read it in detail. Health and nutritional status of people is certainly to be better. लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल PDS अगर सही है, क्योंकि PDS सही होने से क्या होता है, people get a full meal, उनको खाने के लिए जो है हमेशा अच्छा ही खाना मिलेगा, तो they will think of other aspects as well. Okay, नाउ टेबल देखना है, डेटाज देखना है, एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. डेफिनेटली आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. Look at the data in table 1.3 and 1.4. Is Haryana ahead of Kerala in literacy rate etc. as it is in terms of per capita income? क्या हरियाणा आगे है? ठीक है, हरियाणा जो है केरला से किसी भी मामले में आगे है नहीं. पर कैपिटा इनकम में तो आगे है, लेकिन बाकी की चीज़ों में पीछे है. नाउ थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स. और भी कुछ एग्जाम्पल सोचो ना. यू कैन ऑल थिंक वेरी वेल वेयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन. इंडिविजुअली पीपल आर थिंकिंग कि दे आर डूइंग वेरी गुड. कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स, इतना सारा सामान जो अवेलेबल है, एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन. पूरी सोसाइटी के लिए प्रोविजंस, मतलब थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल जहाँ कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स इज देयर. इंडिविजुअली को महंगा पड़ेगा, लेकिन सारे लोगों के लिए मिलकर अगर करेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी. तो कितनी बार द गवर्नमेंट हैव टू टेक मेजर्स वेयर दे आर टेकिंग steps for collectivity. Good health and educational facilities depend only on amount of money. What other factors could be relevant? अभी तो children their कोरोना को ध्यान में रखो. Answer these questions on this basis. तो health और educational facilities तो ज़रूरी है ही. और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? What are the other things that are important? Other factors that are relevant? आप इसमें बताओ. हेल्थ और एजुकेशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं?
मेरे को तो जो चीज़ दिमाग में आ रही है ना, द बिगेस्ट थिंग दैट इज़ कमिंग टू माई माइंड इज़ सैनिटेशन. cleanliness, okay, and clean environment also, clean and green environment, okay, and then the pollution. ये सारा मेरे को नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं. तमिलनाडु में 90% ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज़ अ राशन शॉप. राशन शॉप का इस्तेमाल ये लोग करते हैं तमिलनाडु में, वेराज वेस्ट बंगाल में खाली 35% ऑफ रूरल पीपल, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब आप सोचो, वेयर वुड पीपल बी बेटर ऑफ एंड बाय. 90% जो है राशन शॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो 35% ही कर रहे हैं. तो अभी पीडीएस सिस्टम सही नहीं है बंगाल में, द वे इट इज़ देयर इन तमिलनाडु. गॉट इट? तो चिल्ड्रन इसको करो. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल.